ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਕੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਸਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਬੂਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਹੀ ਵਾਲੇ ਸਨ ਕਿ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਭਿਣਕ ਪੈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਸਬਜ਼ੀ ਖਰੀਦ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2 ਵਾਰੀ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਕੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਦੇ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲਿਆਂ 'ਚ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦੋਵਾਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਵੇਂ ਸਬੂਤ ਲੱਗੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹਸਤਾਖਰਾਂ ਦੀ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ SFL ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਅਸਲੀ ਨਕਾਬ ਉਤਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਭਿਣਕ ਪੈਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸਿਰਸਾ ਨੇ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2013 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2015 'ਚ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2013 'ਚ ਹੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ? ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ 2018 ਤੱਕ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ ਪਰ ਤਦ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਪਰੰਤੂ 2019 'ਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਕੇ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੀਕੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਹੀਂ 2019 ਚ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਕੇਸ ਫਿਰ ਉਠਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ 6 ਜੂਨ 2019 ਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਸਾ ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਤਦ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਹੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਰਵਰੀ 2021 ਤੱਕ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਿਰਸਾ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ 3 ਕੇਸ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਸਾ ਤੇ 2 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। तो मैं कहना समझना चाहूंगा कि पहले बात करते हैं GC1 की। GC1 जो भी जागो पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उससे संबंधित है, आप समझ ही गए होंगे। मैं बात कर रहा हूं राय मनजीत सिंह जीके की जिनको मैं प्यार से GC1 कहता हूं। उनके ऊपर 3 केस हुए जिसको लेकर मैंने कोर्ट में पहले थाने में कंप्लेंट की। थाने वालों ने जब मेरी सुनवाई नहीं की तो फिर उसके बाद मैं कोर्ट गया। कोर्ट में उनके ऊपर किस तरह FIR दर्ज की उसके बारे में मैं बताऊंगा। उसमें 3 केस थे। 80,000 किताबों को छपवाने का 80,000 किताबों का ऑर्डर दिया जाता है जिन वेंडर्स को। हमने कोर्ट में यह प्रूव कर दिया कि वो वेंडर्स ने खुद मान लिया कि हमने कभी किताबें नहीं छापी क्योंकि उस जगह पर वो कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती थी। उसके बाद उन्होंने ये भी कह दिया कि हमने वो जो चेक लिए थे उसके पैसे निकलवा के वापस इनको कैसे दिए हैं ये मैं नहीं कह रहा, ये वो वेंडर्स कह रहे हैं। उन्होंने पुलिस को भी ये स्टेटमेंट दी है और कोर्ट में भी 306 की एप्लीकेशन लगाई है सरकारी गवाह बनने के लिए। उसके बाद तीसरा उनके ऊपर इल्जाम था रैनबी क्लोथिंग प्राइवेट लिमिटेड, एक कंपनी है जिसने पिछले 3 सालों से 2014-15 से लेकर 2016-17 तक 18 तक कोई काम नहीं किया। लेकिन उस कंपनी को दिखाया जाता है कि उस कंपनी ने गुरुद्वारा कमेटी को माल भेजा, उसके बदले में उसको अकाउंट में पेमेंट की गई, जबकि सरकारी खाते में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास वो कंपनी पिछले 3 साल से बंद थी।
कंपनी को उन जो 3000 कंपनियां लगभग रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी ने बंद की थी, उसमें उस कंपनी का नंबर 22032 पे वो बंद आ रही थी कि ये कंपनी बंद है। मजे की बात, जो असली बात है, वो कंपनी किसकी थी? रैंडी क्लोथिंग प्राइवेट लिमिटेड। उसके डायरेक्टर कौन थे? उसके डायरेक्टर थे मंजीत सिंह जीके की बिटिया और उनके दामाद। उस कंपनी का एड्रेस क्या था? हमने प्रूफ कर दिया, उस कंपनी का एड्रेस वही था जो जिस मकान में, जिस घर में मंजीत सिंह जीके आज भी रह रहे हैं। 2 साल में केस इस स्टेज पर पहुंचा कि आपने पुलिस को सेट किया, पुलिस के साथ हैंड इन ग्लव्स हुए, पुलिस ने एफआईआर नहीं की, लेकिन कोर्ट ने सारे प्रूफ देकर माना कि गड़बड़ हुई है। मैं नहीं कह रहा, ऑर्डर्स बोल रहे हैं। उन ऑर्डर्स में कोर्ट ने पुलिस को बार बार फटकार लगाई है। माननीय कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगवाई और कहा कि अगर आप एफआईआर नहीं करते तो फिर हम आपको ऑर्डर देंगे एफआईआर करने का। तो फिर एफआईआर हो गई, पुलिस के साथ फिर आपकी मिली भगत, 420 के केस में आपको एफआईआर कर दी। हमने कहा कि गड़बड़ घोटाले तो और नहीं है, इसमें तो सेक्शन बहुत सारे लगने चाहिए। तो फिर पुलिस को कोर्ट के कहने पर बाकी सेक्शन भी बाद में ऐड करने पड़े, 369, 367, 370, 20B। तो उसके बाद अगर आप कहते हैं कि साबित नहीं हुआ, तो भाई कब साबित करूं? साबित करने का और क्या स्टाइल होता है? मतलब 10 मिनट में 2 घंटे की फिल्म में सारा कुछ खत्म हो जाए। यह है एक GC1। अब उसके बाद आते हैं GC2 पर। GC2 को आप देख लीजिए। GC1 में इसलिए उनको नाम दिया कि कोई ये ना कहे कि उनको GC1 क्यों दिया, मुझे GC1 क्यों नहीं दिया। तो भाई उनके ऊपर 3 एफआईआर है, आपके ऊपर 2 है, इसलिए वो फर्स्ट है, आप सेकंड है जी। तो जिसके ऊपर 3 है तो फर्स्ट तो वही हुआ ना। तो अब GC2 की बारी आती है सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा। उनके ऊपर 2 एफआईआर हो चुकी है। पहली एफआईआर होती है तो बोलते हैं जी मेरे नाम थोड़ी है, मेरे नाम थोड़ी है, ये तो सारे ऑफिस बेरर के नाम है, गुरुद्वारा कमेटी के नाम है, चलो कोई बात नहीं। दूसरी एफआईआर होती है वो उनके नाम से होती है। तो आज मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि जनरल हाउस में आपने बोला था कि जिस दिन मेरे नाम पर एफआईआर होगी मुझे मुंह काला करके गुरुद्वारा कमेटी से निकाल देना। तो वे इतने बुरे तो हम नहीं, आप खुद ही चले जाओ छोड़ के। अगर थोड़ी सी गैरत, थोड़ी सी शर्म बाकी है तो भैया आप खुद ही चले जाओ ना। काम आपका भी वही है, गुरु घर में तिरपालों की खरीद दिखा दी, टेंडर की खरीद दिखा दी, सब कुछ कर दिया, लेकिन काम कुछ नहीं हुआ। उसके बाद मैं अपने बारे में बात करता हूं कि जो जागो पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की 2 दिन पहले सब्जी के मैटर्स को उठाया। वैसे तो मैं पिछले 2 साल में 20 बारी कम से कम इन बातों का जवाब दे चुका हूं, पर मेरी आदत है कि अगर कोई बात करे तो उसका रिप्लाई देना जरूर बनता है और तथ्यों के सहित बनता है। खाली एक नोट रख के पढ़ते जाओ रामायण की तरह, वो नहीं, तथ्यों की तरह उसका जवाब देना पड़ता है और विद प्रूफ देना पड़ता है। तो मैं आज आपको वो सारे पेपर शो करूंगा कि किस तरह से सब्जी की एफआईआर होती है और 2 बारी डिसमिस होती है, 1 बारी नहीं 2 बारी, 2 टाइम डिसमिस होती है। पहले 2013 से 2015, 2013 में केस चलता है और 2015 में खत्म होता है। उसके बाद 2000 जो आगे केस चलता है उसके बारे में बाद में बताता हूं। 2013 में केस चला और 2015 में खत्म हुआ। तो मैं उनसे सिर्फ पूछना चाहता हूं जिन्होंने केस डाला ये सब्जी का सरदार मनजीत सिंह जीके। 2013 में आपके बड़े भाईजान सरदार मनजीत सिंह जीके उर्फ GC1 गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान बन गए थे। केस कोर्ट में चल रहा था। तो 2 साल के अंदर अंदर आपने उस केस में पार्टी बनकर मेरे खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? किस लिए एक्शन नहीं लिया? क्या मैं आपको उस टाइम ठीक लगता था, गलत लगता था? आपने उस टाइम एक्शन क्यों नहीं लिया? इसलिए नहीं लिया कि मैं आपकी पार्टी में था। क्या आपने अपनी पार्टी मेंबर्स को, जो आपके नीचे जितने भी हों, उनको इस बात की छूट दे रखी है कि आप जितनी मर्जी करप्शन करो, जितनी मर्जी लूट करो, जितनी मर्जी चोरी डकैती करो, तुमको माफ है कि आपको कि आप मेरी पार्टी में हो? क्या आपने इस तरह के कोई कायदे कानून बना रखे हैं कि जब तक वो आपकी पार्टी में रहेगा वो पाक साफ है, जब वो आपकी पार्टी से चला जाएगा तो वो दोषी हो जाएगा? 2013 से 15 में वो केस चलता है, 13 में चलता है, 15 में खत्म हो जाता है। अब बात आती है 2015 से 18 तक, तब भी मनजीत सिंह जी के प्रधान है, रेगुलर प्रधान है पिछले 7 साल से 6 साल से।
तब भी कोर्ट में कोई इनकी तरफ से केस नहीं डाला जाता। 4-5 साल ये सोए रहते हैं। 2015 में केस खत्म हो गया, 2018 तक प्रधान रहे, कोई केस नहीं डाला जा रहा। अब केस कब डाला जाता है मैं उसके विषय में आपको बताता हूं। मेरी नेचर क्या रही है, मैं उसके साथ भी विद प्रूफ हर बात करता रहूंगा। 29/5/2018 को दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी में जनरल हाउस होता है, उसके बाद मैं एक थाने में एप्लीकेशन लगाता हूं कि यहां पर जो तथ्य पेश किए जा रहे हैं दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी में कई तरह की गड़बड़ घोटाले हैं, कई तरह की करप्शन है। उस करप्शन को लेकर मैं मोती नगर थाने में डीडी नंबर 68B डेट 29/5/18 को एक लेटर लगाता हूं और उसके बारे में सारे तथ्य देता हूं। खाली वही नहीं लगाता, उस लेटर को मैं डीसीपी और कमिश्नर ऑफ पुलिस को भी देता हूं। ये नीचे उनकी भी कापियां हैं। उसके बाद 21/10/2018 ये जो अभी केस हुई जिसके बारे में मैं GC1 के बारे में बता रहा था, सरदार मंजीत सिंह जीके के बारे में, उसकी कंप्लेंट मैं 21/10/18 को नॉर्थ एवेन्यू पुलिस स्टेशन में करता हूं, पुलिस कमिश्नर को करता हूं, डीसीपी दिल्ली पुलिस को करता हूं, नॉर्थ एवेन्यू को। 21/10/18 डेट को याद रखना, सन 18। मैं कहता हूं कि ये तीनों कांड हुए हैं। $1 लाख कैनेडियन डॉलर की गड़बड़ी हुई है, बुक्स नहीं छपे, उनके बिल पास हुए हैं। रैंडी क्लोथिंग लिमिटेड नाम से कंपनी जीके के घर पे बनी हुई है, उसकी बेटी दामाद की, इसमें वो बहुत सारे इल्जाम लगाता हूं। तब भी ये मेरे खिलाफ FIR कराने या सब्जी का केस डालने नहीं जाते। उसके बाद मैं 28/12/2018 को एक एप्लीकेशन लगाता हूं नॉर्थ एवेन्यू पुलिस स्टेशन में, जिसका डीडी नंबर है 34A 28/12/2018। क्योंकि 28/10 पर मैं कंप्लेंट कर चुका हूं, उन 2 महीने में मुझे कई तरह की धमकियां मिलती है, कई तरह से अपनी एप्लीकेशन को वापस लेने के लिए दबाव बनता है। तो मैं 28/12/2018 को फिर एक पुलिस कमिश्नर को, एक डीसीपी को, एक नॉर्थ एवेन्यू पुलिस स्टेशन को ये लगाता हूं कि ये लोग मुझे धमकी दे रहे हैं कि तुझे सब्जी के मैटर में झूठे एविडेंस बना के फंसा देंगे। मुझे सपना नहीं आ गया था कि ये भी केस करेंगे, लेकिन मैंने जो मुझे ये धमकियां दे रहे थे मैंने उसके बारे में बताया। और ये पुलिस की कंप्लेंट है, जिसको कापी चाहिए, मंजीत सिंह जीके को चाहिए, मजिंदर सिंह सिरसा को चाहिए, मैं दे दूंगा। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ।